Namaskar and pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel Asit Government Rule Guru. Today, I will discuss Navodaya Vidyalaya Samiti procedure, NVS procedure related to the purchase procedure, condemnation procedure, library books without. So, this part definitely would be interesting one. In this part, I will discuss the purchase procedure of NVS. JNV, Jawahar Navodaya Vidyalaya Samiti. Second one, exam pattern related to the JNVST and list, related to the question pattern. Third one, condemnation procedure. Fourth one, weed out of library books. So already it is late. Tomorrow, it means May 18th, principal and vice principal exam. It is LDC, Limited Departmental Competitive Examination. For NVS staff will be conducted. So it is already late, and I think that definitely in the last moment I will upload this video, and it will be useful for many candidates. So my friends, please subscribe my channel, share my channel, like my channel, so that you can get notification for my upcoming videos. Follow my Facebook page, same Asit Government Rule Guru. If you follow my page, then systematically you can get video links. My WhatsApp number is there, 8327782034. If any queries there, you can contact with me and clear your doubts. So now I am going to discuss the NVS procedure, Navodaya Vidyalaya Samiti procedure. First one, I will discuss about purchase procedure of NVS. Okay, it is very important one, and definitely you can get one question related to this. You see, serial number, type of purchase or services, existing limits, it is clearly given. First one, purchase of goods without quotations. So in NVS it is up to 15,000. Okay, but in GFR rule आप देख लीजिए, GFR rule 154, it is according to the GFR rule, it is up to 50,000. It is up to 50,000. Okay, but in NVS, JNV, you can purchase goods without calling quotations. It is up to rupees 15,000. Clear? But in GFR rule 154, you see, without quotation, it is up to 50,000. Next one, local purchase committee. Spot purchase of goods by local purchase committee after survey of market to be constituted by the principal. It is up to 50,000 in NVS. Okay, local purchase committee, LPC, actually 3 members. It can be formed by the principal, and the committee will go to the market and basically survey the commodity, which commodity the JNV want to purchase. The committee see the specification, quality, so these things actually the committee members, they check specification of the commodity, quality of the commodity, price of the commodity, or authentication of the seller, and GST bill, everything check by the LPC, and bring at least 3 quotations. Okay, bring at least 3 quotations, and then whose price is least one, it means like L1, whose price is least one, then from that seller actually the commodity can be purchased. Okay, it is up to 50,000. But if you go to the GFR rule 155, देखिए, with quotations, it is more than 50,000, more than 50k to 5 lakhs, to 5L में लिख दिया 5 lakhs. Clear? So first one clear, second one clear. So without quotation 15,000 up to 15,000. आप कोटेशन से जाएंगे NVS में, JNV में, तो up to 50,000, right? Up to 50,000. If any commodity you want to procure and it is up to estimated value of the commodity is up to 50,000, then market survey by the local purchase committee, right? But in actually GFR rule 155, it is greater than 50,000 to 5 lakh. Okay, LPC go to the market and verify the commodity, and at least 3 quotations actually bring by the
committee, and then it can be analyzed, and whose price is the least one, then items from that seller the commodity can be procured. Right. थर्ड को चलेंगे, लिमिटेड टेंडर को चलेंगे. लिमिटेड टेंडर बाय इनवाइटिंग कोटेशंस फ्रॉम मिनिमम 3 नंबर ऑफ फार्म्स. ओके, इन एनवीएस इट इज अप टू 1 लाख. एनवीएस में अप टू 1 लाख है. एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द कमोडिटीज अप टू 1 लाख. तब हम लिमिटेड टेंडर में जाएंगे. तो लिमिटेड टेंडर में ये है कि एटलीस्ट 3 फार्म्स. ओके, तो मिनिमम 3 फार्म्स. ओके, मिनिमम 3 फार्म्स का डिटेल्स को एनालाइज किया जाएगा, और जिसका प्राइस लिस्ट होगा उससे एक्चुअली उसको बीड अवार्ड कर दिया जाएगा. ठीक है, मगर आप चलेंगे जीएफआर रूल 162. जीएफआर रूल 162, इट इज अप टू 50 lakhs. एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द गुड्स अप टू 50 लाख. एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द गुड्स अप टू 50 लाख. आप लिमिटेड टेंडर में जाएंगे, और सेम थिंग, एटलीस्ट 3 सेलर्स. कंपेयर एटलीस्ट 3 सेलर्स एक्चुअली प्राइस, राइट, एंड व्हिच प्राइस इज लिस्ट वन, द बीड कैन बी अवॉर्डेड, ओके, टू हिम. क्लियर. बट जेएनवी में अप टू 1 लाख लिमिटेड टेंडर. देन फोर्थ वन, ओपन टेंडर बाय एडवर्टाइजिंग इन न्यूज. एडवर्टाइज टेंडर को चलेंगे. जेएनवी में अबव 1 लाख एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी, राइट. मगर आप जीएफआर में चलेंगे. जीएफआर का रूल देखिए, जो 80 है, एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी है. रूल जीएफआर रूल 161 है, और इसमें क्लियरली मेंशन है कि ग्रेटर देन 50 lakhs व्हेन एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द गुड्स, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द गुड्स इज ग्रेटर देन 50 lakh, देन गो फॉर एडवर्टाइज टेंडर. मगर ये हम एनवीएस प्रोसीज्योर के ऊपर बता रहा हूं, थोड़ा मैं कंपेयर कर दिया. आप कल एग्जाम फेस करोगे तो इससे रिलेटेड में क्वेश्चन आ सकता है, मगर एनवीएस में आप देख लीजिए. तो और एक बार थोड़ा बताता हूँ. विदाउट कोटेशन अप टू 15,000, एंड कोटेशंस में चलेंगे अप टू 50,000. लिमिटेड टेंडर में जाएंगे, मिनिमम 3 नंबर ऑफ फार्म्स शुड बी अप्लाइड अप टू 1 लाख, एंड आप एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी में जाएंगे अबव 1 लाख. ओके, ये एनवीएस का परचेज प्रोसीजर, जेएनवी का परचेज प्रोसीजर है. ओके, क्लियर. चलो नेक्स्ट पार्ट को चलेंगे. थोड़ा एग्जाम पैटर्न को देख, क्वेश्चन पैटर्न क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है. फर्स्ट वन जेएनवीएसटी स्टैंडर्ड 6 के ऊपर हम डिस्कस करेंगे. देन लैटरल एंट्री स्टैंडर्ड 9, देन लैटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट स्टैंडर्ड 11. तीनों एग्जाम का जो क्वेश्चन पैटर्न है उसके ऊपर कैसे क्वेश्चन आ रहा है, मैं भी उसको भी डिस्कस करूंगा. आप देख लीजिए, फर्स्ट बहुत पॉपुलर एग्जाम जेएनवीएसटी जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट स्टैंडर्ड 6. ओके, स्टैंडर्ड 6 में जो क्वेश्चन पैटर्न है, एक्चुअली टोटल एग्जाम टाइम 2 आवर्स है, इसको याद रखना है. ओके, जेएनवीएसटी स्टैंडर्ड 6 का एडमिशन के लिए जो एग्जाम होता है, सीबीएसई जो एग्जाम कंडक्ट करता है, और एग्जाम कंडक्टेड बाय सीबीएसई, याद रखिए, एग्जाम टोटल टाइम 2 आवर्स है. यदि दिव्यांग स्टूडेंट्स है तो 40 मिनट्स एक्स्ट्रा होगा. तो दिव्यांग स्टूडेंट्स के लिए, डिसेबल स्टूडेंट्स के लिए 2 आवर 40 मिनट्स, बट नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए 2 आवर्स. अच्छा, क्वेश्चन जो टेस्ट होता है उसमें 80 क्वेश्चंस आएगा. 80 क्वेश्चंस 100 मार्क्स होगा. तो ईच क्वेश्चन को 1.25 मार्क अवार्ड किया जाएगा, इसको याद रखिए. ठीक है, तो सेक्शन 1 में मेंटल एबिलिटी आएगा, इस सेक्शन को भी याद रखिए. मेंटल एबिलिटी 40 क्वेश्चंस आएगा. 50% क्वेश्चंस मेंटल एबिलिटी, ये 50% क्वेश्चंस मेंटल एबिलिटी, याद रखिए परसेंटेज को. क्वेश्चन ऐसे आता है, और 1.25 40 क्वेश्चंस आएगा मेंटल एबिलिटी से. पर क्वेश्चन कितना मार्क अवार्ड होगा, 1.25, तो 50 मार्क्स हो गया. देन एरिथमेटिक आएगा सेक्शन 2 में, वो 20 क्वेश्चंस आएगा, और ये 25%. ठीक है, एरिथमेटिक 25%, तो 20 क्वेश्चंस मींस ईच क्वेश्चन कैरी हाउ मच मार्क, 1.25 मार्क, तो 25 मार्क्स आ गया. सेक्शन 3 में लैंग्वेज आ जाएगा. ठीक है, लैंग्वेज भी 20 क्वेश्चंस आएगा, एंड ईच क्वेश्चन कैरी 1.25 मार्क, ये भी 25 मार्क्स, तो ये 25%. तो आपको परसेंटेज के हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मेंटल एबिलिटी क्वेश्चंस आउट ऑफ द टोटल क्वेश्चंस. So it is 50%. कि what is the percentage of arithmetic questions in total number of questions? It is 25%. तो इसको याद रखना है. एग्जाम आवर 2 आवर्स है,
दिव्यांग स्टूडेंट्स के लिए 40 मिनट्स एक्स्ट्रा होगा। अच्छा, क्वेश्चन पूछेगा हाउ मेनी क्वेश्चंस आस्किंग इन JNVST स्टैंडर्ड 6 एग्जामिनेशन, तो इट इज 80 क्वेश्चंस, मगर मैक्सिमम मार्क इज 100 मार्क। 80 क्वेश्चंस 100 मार्क, और ईच क्वेश्चन को कितना मार्क अवार्ड किया जाएगा, सपोज क्वेश्चन पूछ सकता है हाउ मच मार्क शुड बी अवार्डेड फॉर ईच क्वेश्चन। ओके, हाउ मच मार्क should be awarded for each question in JNVST examination. Okay, it is 1.25 mark. Clear? So all objective questions होता है। तो ये सेक्शन 3 सेक्शंस को आपको याद रखना है। इसके ऊपर थोड़ा घुमाकर कितना आवर का एग्जाम होता है, दिव्यांग स्टूडेंट्स के लिए कितना मिनट्स एक्स्ट्रा दिया जाएगा, ओके, टोटल मार्क कितना है, टोटल क्वेश्चंस कितना है, मेंटल एबिलिटी में कितना परसेंटेज का क्वेश्चन आता है, कि मेंटल एबिलिटी में कितना क्वेश्चंस आता है, यदि 40 मेंटल एबिलिटी में 40 क्वेश्चंस आता है तो उसको कितना मार्क उसको कन्वर्ट किया जाएगा। इन मेंटल एबिलिटी इन JNVST एग्जामिनेशन, इन मेंटल एबिलिटी 40 क्वेश्चंस आस्किंग, बट हाउ मच मार्क एक्चुअली इट इज अवार्डेड फॉर 40 क्वेश्चंस, सो लाइक दिस इट इज 50, ईच क्वेश्चन कैरी 1.2, सो थोड़ा घुमाएगा। ठीक है, तो आपको पूरा पिक्चर दे दिया है पैटर्न ऑफ क्वेश्चन ये JNVST स्टैंडर्ड 6 एडमिशन के लिए। चलो थोड़ा लैटरल एंट्री को चलेंगे। ये स्टैंडर्ड 9 में आप जानते हो एक लैटरल एंट्री एग्जामिनेशन होता है, लैटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट स्टैंडर्ड 9। तो यहां पर हम जब आएंगे, यहां पर एग्जामिनेशन ड्यूरेशन है 2 आवर 30 मिनट्स, याद रखिए 2.5 आवर्स, बट दिव्यांग स्टूडेंट्स के लिए 50 मिनट्स एक्स्ट्रा, यहां पर 50 मिनट्स। JNVST स्टैंडर्ड 6 जो एग्जाम होता है उसमें दिव्यांग के लिए 40 मिनट्स था एक्स्ट्रा, मगर यहां पर 50 मिनट्स, और वहां पर 2 आवर एग्जाम था, ये 2.5 आवर एग्जाम है। ठीक है, और 4 सेक्शन है, सेक्शन को याद रख, 4 सेक्शंस। हिंदी लैंग्वेज नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 क्वेश्चंस 15 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज 15 क्वेश्चंस 15 मार्क, मैथमेटिक्स 35 क्वेश्चंस 35 मार्क, जनरल साइंस 35 क्वेश्चंस 35 मार्क। ऐसे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 है, टोटल मार्क्स 100 है, ऑल ऑब्जेक्टिव टाइप है। और सेक्शंस के ऊपर क्वेश्चन, हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर, सपोज इन लेस्ट एग्जाम फॉर स्टैंडर्ड 9 इन क्वेश्चन पैटर्न हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर, 4 सेक्शंस आर देयर। और सब्जेक्ट के ऊपर पूछ सकता है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस। ओके, टाइम भी बेसिक ड्यूरेशन आप देख लीजिए 2 आवर 30 मिनट्स। जो 35 क्वेश्चन है मैथमेटिक्स में, जनरल साइंस में 35 क्वेश्चन है, उनके लिए 50 मिनट्स शेयर होगा, और हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए जो 15 क्वेश्चन है उसके लिए शेयर होगा 25 मिनट्स। मगर ये कंटिन्यू एग्जाम होता है 2.5 आवर। ये पैटर्न को मैं बता दिया। तो उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100, टोटल मार्क्स 100, बट मोस्ट इंपोर्टेंट वन इज सपोज मैथमेटिक्स, इट इज आस्किंग व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मैथमेटिक्स आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन लेस्ट एग्जाम फॉर स्टैंडर्ड 9, इट इज 35%। मैथमेटिक्स इज टोटल मार्क 100 है ना, सो 35%, जनरल साइंस 35%, इंग्लिश 15%, हिंदी 15%। क्वेश्चन के हिसाब से भी परसेंटेज पूछेगा, वही 35%, मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश ऑल्सो 15%। ठीक है, और यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, दिव्यांग स्टूडेंट्स को 50 मिनट्स एक्स्ट्रा दिया जाता है। क्लियर? चलो नेक्स्ट वन, यहां पर और एक मजा बात है, क्राइटेरिया जो है, आपको ये जो 4 सब्जेक्ट्स है, जैसे हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, मैथ, साइंस, 4 सब्जेक्ट्स में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क लाना है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना है। मगर जब मेरिट लिस्ट एक्चुअली व्हेन द CBSE मेक द मेरिट लिस्ट, वो उसमें 3 सब्जेक्ट्स लेता है, क्योंकि जो लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश में जो ज्यादा मार्क वो वही ले लेगा। ठीक है, और बाकी मैथ, साइंस है, मैथमेटिक्स, साइंस है आउट ऑफ 35, मैथमेटिक्स आउट ऑफ 35, जनरल साइंस। मगर दोनों लैंग्वेज में जिसमें हाईएस्ट मार्क रहेगा, 1 of 2 लैंग्वेजेस इन विच कैंडिडेट हैज स्कोर्ड मोर मार्क्स, उसको, ये दोनों में जो मोर मार्क्स रहेगा उसको लेंगे। मगर मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको ये जो 4 सब्जेक्ट्स है उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क रखना है। एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में यदि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क नहीं रहेगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। फर्स्ट मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क, 4 सब्जेक्ट्स में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क देखेगा CBSE, देन वो 3 सब्जेक्ट्स का मार्क को कंसिडर करके मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करेगा, मैथ, साइंस, और जो थर्ड वन है वो इंग्लिश, हिंदी, जिसमें एक्चुअली हाईएस्ट मार्क होगा आउट ऑफ 15, हिंदी में 15 मार्क्स है, इंग्लिश में 15 मार्क्स है, तो जिसमें ज्यादा मार्क मिलेगा उसको ऐड कर दिया जाएगा। तो मैथ, साइंस प्लस हिंदी और इंग्लिश,
ये दोनों में जो हाईएस्ट है, ठीक है, क्लियर। तो चलो नेक्स्ट वन, स्टैंडर्ड 11 का लैटरल एंट्री इट मीन सिलेक्शन टेस्ट एग्जामिनेशन conducted by NVS, ओके, अक्रॉस इंडिया इन ए स्पेसिफिक डेट। तो यहां पर भी देख लीजिए, यहां पर जो सेक्शन है, क्वेश्चन पैटर्न है, यहां पर एग्जामिनेशन टाइम 2.5 आवर, 2 आवर 30 मिनट्स। सेम दिव्यांग के लिए 50 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलेगा, और नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है, नंबर ऑफ मार्क्स भी 100 है। और यहां पर 5 सेक्शन है, देखिए 6 में 3 सेक्शन था, 9 लैटरल एंट्री में 4 सेक्शन था, इसमें 5 सेक्शन है 11 में, 3 4 5 याद रखिए। सेक्शन क्लियर हो गया। सब्जेक्ट देखेंगे, इसमें मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज, साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स। तो सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स और इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा और मेंटल एबिलिटी रहेगा। और सभी में 20 क्वेश्चंस रहेगा, 20% रहेगा। मेंटल एबिलिटी 20 क्वेश्चंस, इंग्लिश लैंग्वेज 20 क्वेश्चंस, साइंस 20 क्वेश्चन, सोशल साइंस 20 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेगा, टोटल मार्क्स 100 रहेगा, और जो एग्जाम पैटर्न रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा पैटर्न को देख लीजिए, इसमें एक एटलीस्ट एक 1 क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। कभी कभी क्या है, ठीक है, ये सब सबको मालूम है, मगर कभी कभी क्या है, हम स्किप कर जाते हैं और इतना ध्यान नहीं देते हैं उसके ऊपर, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलेंगे, अभी कॉन्डेमनेशन प्रोसीज्योर के ऊपर चलेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर क्वेश्चन आपको मिलेगा। प्रोसीज्योर फॉर कंडेमनेशन एंड डिस्पोजल ऑफ आर्टिकल्स इन जेएनवीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो जब हम कंडेमनेशन एंड डिस्पोजल ऑफ आर्टिकल्स चलेंगे, तो किस तरीके का आर्टिकल्स को हम कंडेम करेंगे और डिस्पोजल करेंगे। फर्स्ट वन देखिए, नॉन कंज्यूमेबल आर्टिकल्स व्हिच आर आइडेंटिफाइड एज ऑन सर्विसेबल ड्यू टू एक्सपायरी। तो लाइफ स्पैन हो गया, जो नॉन कंज्यूमेबल, जो फिक्स्ड एसेट है, उसका एक लाइफ स्पैन होता है। जब उसका लाइफ स्पैन क्रॉस हो गया, वो अनसर्विसेबल हो गया, उसको हम यूज नहीं कर सकते, तो उसको हमको कंडेम करना है, उसको डिस्पोज करना है, ठीक है। तो नॉन कंज्यूमेबल आर्टिकल्स व्हिच आर आइडेंटिफाइड एज अनसर्विसेबल ड्यू टू एक्सपायरी ऑफ लाइफ स्पैन। कुछ ऐसा फिक्स्ड एसेट है, उसका लाइफ स्पैन होता है, सपोज लाइफ स्पैन 10 ईयर्स है, तो जब 10 ईयर्स खत्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो उसको हम कंडेम करेंगे और डिस्पोज करेंगे। सेकेंड है नॉन कंज्यूमेबल आर्टिकल्स व्हिच आर आइडेंटिफाइड एज अनसर्विसेबल बिफोर एक्सपायरी ऑफ लाइफ स्पैन ड्यू टू अनइकोनॉमिकल रिपेयर। एक्चुअली उसका लाइफ स्पैन खत्म नहीं हुआ है, मगर बिफोर क्या हुआ, वो जब हम रिपेयर करने के लिए उसको लेंगे, वो इकोनॉमिकल नहीं होगा, वो हमारे लिए अनइकोनॉमिकल हो जाएगा, ज्यादा प्राइस लगेगा, उसका लाइफ स्पैन खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। सपोज एक मशीन है, उसका लाइफ स्पैन 10 ईयर्स है, मगर उसका ओनली 8 ईयर्स है, वो अनसर्विसेबल हो गया। जब हम रिपेयर करने के लिए गए, वो हमारे लिए अनइकोनॉमिकल हो गया, बहुत ज्यादा पैसा खर्च हुआ। तो इस तरीके का प्रोडक्ट को हम कंडेम करेंगे और डिस्पोज करेंगे। थर्ड वन, नॉन कंज्यूमेबल आर्टिकल्स व्हिच आर आइडेंटिफाइड एज फुली अनसर्विसेबल बिफोर एक्सपायरी ऑफ लाइफ स्पैन ड्यू टू नेग्लिजेंस, फ्रॉड, थेफ्ट, मिसचीफ और मिसिंग। यहां पर क्या है, जो नॉन कंज्यूमेबल आर्टिकल्स है व्हिच आर आइडेंटिफाइड एज फुल्ली अनसर्विसेबल। क्यों फुल्ली अनसर्विसेबल है? बिफोर लाइफ स्पैन नेग्लिजेंस है, ड्यू टू नेग्लिजेंस, ड्यू टू मिसहैंडल, ड्यू टू फ्रॉड, ड्यू टू थेफ्ट, ड्यू टू मिसचीफ और मिसिंग। एक्चुअली वो उसका लाइफ स्पैन खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, मगर वो बिफोर लाइफ स्पैन एक्चुअली अनसर्विसेबल हो गया। क्योंकि कभी कभी क्या है, नेग्लिजेंस के वजह से, कि उस फ्रॉड हो गया, कि उसको चोरी हो गया, कि कुछ मिसचीफ और मिसिंग। क्योंकि हमको कोई भी आपको प्रोडक्ट है ना, फिक्स्ड एसेट है, उसमें क्या है, उसको रेगुलरली रिपेयर, उसको जब रिपेयर चाहेगा उसको रिपेयर करना है। आप रिपेयर नहीं करोगे, उसको नेग्लेक्ट करके छोड़ दोगे, तो ऑटोमेटिकली बिफोर लाइफ स्पैन एक टाइम आएगा, वो अनसर्विसेबल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके का प्रोडक्ट को हम कंडेम और डिस्पोज करेंगे। और एक ऑब्सोलेट आर्टिकल से, ऑब्सोलेट क्या है एक्चुअली, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे आपके पास डेस्कटॉप था, मगर अभी लैपटॉप आ गया, तो लैपटॉप रिप्लेस डेस्कटॉप, तो हमें डेस्कटॉप को हम ऑब्सोलेट बोलेंगे, क्योंकि अभी हमको लैपटॉप यूज करना है, तो वो डेस्कटॉप पुराना हो गया, क्योंकि ऑलरेडी हम न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे, वी अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी, सो लैपटॉप इज न्यू वन, सो लैपटॉप रिप्लेस द डेस्कटॉप, तो डेस्कटॉप को हमको कंडेम करना है और डिस्पोज करना है, वो ऑब्सोलेट हो गया।
नेक्स्ट वन सरप्लस आर्टिकल्स, कभी कभी ज्यादा आर्टिकल्स हो जाता है, ठीक है, और उसको वो ज्यादा अननेसेसरली ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करता है, ठीक है, और कभी कभी हम क्या है न्यू जो आइटम को खरीदने के लिए हमारे पास जगह नहीं होता है, तो सरप्लस आर्टिकल्स को हम कंडेम और डिस्पोज करेंगे। देखिए जो 5 पॉइंट्स है ना उसको रिमेंबर करना है, कुछ ऑप्शन आपको मिलेगा, ठीक है। तो किस तरीके का आर्टिकल्स को जेएनवीज में हम कंडेम करेंगे और डिस्पोज करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन फ्रीक्वेंसी देखेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ कंडेमनेशन। आप देखिए, आप जीएफआर रूल 213 देखिए, 213 का आप फास्ट उसका बीट देखिए, उसका फास्ट बीट में वो दिया है फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इसमें फिजिकल वेरिफिकेशन होगा फिक्स्ड एसेट्स का, और 213 डबल आई में क्लियरली दिया है फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ कंज्यूमेबल्स, कंज्यूमेबल आइटम्स, ठीक है। तो ये दिया है, और जो आप 213 उसका आप थर्ड बिट देखेंगे, उसमें क्लियरली मेंशन है कि प्रोसीज्योर फॉर वेरिफिकेशन, प्रोसीज्योर क्या है वेरिफिकेशन का। तो यहां पर एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है। सो 213 हमारा जो फिजिकल वेरिफिकेशन होगा फिक्स्ड एसेट्स का मेनली है 213, उसका फास्ट बिट देख लीजिए, ठीक है, उसका एक फास्ट सेक्शन देख लीजिए 213 का। तो 213 है वेरिफिकेशन ऑफ 13 सब सेक्शन 1 है फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। जो 2 है वो बेसिकली ये फिक्स्ड एसेट्स है, जब 2 हो जाएगा वो कंज्यूमेबल आइटम्स हो जाएगा, और जब 3 हो जाएगा थर्ड सब सेक्शन में उसको कैसे फिजिकली वेरीफाई किया जाएगा, क्या प्रोसीजर है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। तो यहां पर जो कंडेमनेशन प्रोसीजर है, एक्चुअली एवरी फाइनेंशियल ईयर में जब फिजिकल फर्स्ट एवरी ईयर में फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, एक फिजिकल वेरिफिकेशन कमिटी है, तो उसके बाद हम चेक करेंगे कि इस तरीके का नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स को हम कंडेम करेंगे, डिस्पोज करेंगे, ठीक है, ड्यूरिंग फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, इसको भी याद रखिए। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एनुअल स्टॉक वेरिफिकेशन, तो मेंबर्स होते हैं, एक वेरिफिकेशन कमिटी होता है, जो एक स्टॉक होल्डर होता है और एक 3 मेंबर्स जाके आपका स्टॉक को चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे, और उसी समय क्या होगा जो स्टॉक होल्डर है वो सेपरेट करेगा कि इस तरीके का आर्टिकल्स को हम कंडेम करेंगे कि डिस्पोज करेंगे, ठीक है। तो वो रिकमेंडेशन दे आर ऑन बाय द स्टॉक वेरिफिकेशन कमिटी। तो स्टॉक वेरिफिकेशन कमिटी भी रिकमेंड करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली वो साइन करेंगे, वहां पर रिकमेंड करेंगे कि ये आर्टिकल को कंडेम किया जाएगा, क्योंकि किस तरीके का आर्टिकल्स को मैं डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है। तो जो जीएफआर 213 है वो फिजिकल वेरिफिकेशन, एवरी ईयर फिजिकल वेरिफिकेशन होता है जो फिक्स्ड एसेट्स का, जो नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स का। तो फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए कमिटी है, कमिटी जाएगा, वो आपका चेक करेगा, प्रोडक्ट को देखेगा और आपका स्टॉक रजिस्टर को देखेगा, ठीक है। और उस समय सपोज कोई आर्टिकल्स को कंडेम किया जाएगा, वो वेरिफिकेशन कमिटी एक्चुअली रिकमेंड करेगा, ठीक है। और ये फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में हो जाना चाहिए, क्लियर। और ये इसको थोड़ा याद रखना है, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। और फिजिकल वेरिफिकेशन जो है जीएफआर रूल आपको याद रखना है 213, और उसका जो सबसेक्शन 1 है वो फिक्स्ड एसेट्स है, 2 है आपका कंज्यूमेबल आइटम्स का वेरिफिकेशन होता है, 3 में हाउ टू वेरीफाई द एक्चुअली आइटम्स, व्हाट इज द प्रोसीज्योर फॉर वेरिफिकेशन, वो है, ठीक है। तो इसको याद रखना है। और कभी कभी क्या है, सेकेंड पॉइंट, इन एडिशन टू अबव whenever required stock verification may be taken up again and condemnation process may be taken up as per need in the same financial year, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कमिटी फॉर्मेशन होता है। तो कमिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए जीएफआर रूल 217 उसका सबसेक्शन डबल आई, देखिए जीएफआर का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें देखिए इसका सबसेक्शन डबल आई, आप देखिए यहां पर एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करेगा। वैसे ही जेएनवी में कमिटी और जेएनवी लेवल, तो जेएनवी लेवल में इस तरह का कमिटी होता है, उसका कमिटी का जो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा उसको हम देखेंगे। तो जीएफआर ये रूल को आपको याद रखना है, ठीक है। जीएफआर रूल 217 उसका सबसेक्शन 2 है, डबल आई जो है, ठीक है। अच्छा, कमिटी में प्रिंसिपल इज द चेयरपर्सन, ठीक है। सेकेंड वन, यदि कोई भी पर्टिकुलर आइटम का ओरिजिनल परचेज वैल्यू मोर देन 50,000 हो जाएगा,
तब हम एक नियर बाय जेएनवी का प्रिंसिपल को हम मेंबर के आकार में रखेंगे। याद रखिए पर आइटम, मैं इसको रेड में लिखा, ओरिजिनल परचेज वैल्यू मोर देन ₹50,000 पर आइटम। पर आइटम एक आइटम यदि उसका ओरिजिनल परचेज वैल्यू ग्रेटर देन 50,000 हो जाएगा और उसको हम कंडेम करेंगे, तो उस केस में एक एडिशनल मेंबर हमको रखना है जो नियर बाय जेएनवी का प्रिंसिपल होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज सपोज आइटम का लेस देन, कोई पर्टिकुलर आइटम का वैल्यू लेस देन ₹50,000 जरूरत नहीं है, मगर यदि पर आइटम, ये देखिए पर आइटम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर आइटम ओके ग्रेटर देन 50,000 ओरिजिनल परचेज प्राइस, ओरिजिनल परचेज प्राइस, तब हम जब कंडेम करेंगे तब वहां पर जो नियर बाय जेएनवी का प्रिंसिपल को हम मेंबर के आकार में रखेंगे। ठीक है, अदरवाइज नहीं है। सपोज लेस देन कोई जो भी आइटम हम कंडेम करेंगे उसका जो पर आइटम वैल्यू है लेस देन 50,000 है, तो ये जरूरत नहीं है। सपोज हम 5 आइटम्स को कंडेम करेंगे और ईच आइटम का वैल्यू लेस देन 50,000 है, तो इसमें ये मेंबर जरूरत नहीं है। नियर बाय जेएनवी का प्रिंसिपल एक मेंबर रखना जरूरत नहीं है, मगर इसमें एक आइटम यदि मोर देन 50,000 पर उसका परचेज वैल्यू ओके ओरिजिनल परचेज वैल्यू मोर देन 50,000 होगा, तब हम एक मेंबर रखेंगे, नियर बाय प्रिंसिपल, नियर बाय जेएनवी का प्रिंसिपल को मेंबर के आकार में रखेंगे। ठीक है, और अदर मेंबर्स जैसे वाइस प्रिंसिपल, यदि वाइस प्रिंसिपल नहीं है सीनियर मोस्ट टीचर, स्टॉक होल्डर, जो स्टॉक होल्डर है जो कमोडिटी को कंडेम किया जाएगा उसका स्टॉक होल्डर, स्टोर कीपर, ठीक है, ऑफिस सुपरिटेंडेंट जो ओएस है वो मेंबर सेक्रेटरी है। क्लियर, तो ये सब मेंबर्स है। तो आप याद रखिए जो भी आइटम्स हम कंडेम करेंगे, यदि ईच आइटम, देखिए ईच आइटम का जो वैल्यू है लेस देन 50,000 है, तो उसमें कितना मेंबर्स रहेंगे? 5 मेंबर्स रहेंगे। उसमें ओनली जो नियर बाय जेएनवी का प्रिंसिपल एक जो मेंबर उसमें नहीं रखेंगे, क्योंकि ईच आइटम का जो वैल्यू है, जो वैल्यू मीन्स क्या है? परचेज प्राइस, ओरिजिनल परचेज प्राइस, वैल्यू मीन्स ओरिजिनल परचेज प्राइस लेस देन 50K है, तो वहां पर 5 मेंबर्स रहेंगे। यदि कोई भी आइटम का ओरिजिनल परचेज प्राइस ग्रेटर देन 50,000 है, तो वहां पर हम एक एडिशनल मेंबर रखेंगे, नियर बाय जेएनवी का प्रिंसिपल को मेंबर के आकार में रखेंगे। ठीक है, और यहाँ इस केस में 6 मेंबर्स हो जाएगा। बाकी इसमें दिया है दिस मेंबर में बी dispensed of if the proposed condemnation list of items does not contain any item whose purchase value is more than 50,000 per item। ओके, तो इसमें आपको ध्यान देना है कि यदि whose purchase value is more than 50,000 rupees 50,000 per item, this member may be dispensed of if the proposed condemnation list of items does not contain any item whose purchase value is more than 50,000 rupees 50,000 पर आइटम। तो पर आइटम के ऊपर मैं बताया, यदि पर आइटम का वैल्यू मोर देन 50,000 होगा, तो इसमें जो नियर बाय, जो इसमें लिख देता हूं, नियर बाय जेएनवी जो प्रिंसिपल एक मेंबर होता है उसको हम, ठीक है, हुज परचेज वाले जो, अच्छा, इसको ये मेंबर को हम रखेंगे। ठीक है, यदि कोई भी एक पर्टिकुलर आर्टिकल का ओरिजिनल परचेज वैल्यू ग्रेटर देन 50,000 हो जाएगा, हम उसको कंडेम करने के लिए प्रोसेस करेंगे, तो ये मेंबर जरूरी है। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। नेक्स्ट वन, द कमिटी जो है वो रिव्यू करेगा द स्टाटस ऑफ, कमिटी क्या क्या रिव्यू करेगा? द स्टाटस ऑफ ऑन सर्विसेबल आर्टिकल्स which have completed their prescribed span of life, कि the status of on serviceable articles which have not completed their prescribed span of life but on economical to repair, माने लाइफ स्पैन खत्म नहीं हुआ है मगर उसको हम रिपेयर करेंगे तो ज्यादा खर्च लगेगा, तो अन इकोनॉमिकल हो जाएगा। ऑब्सोलेट आर्टिकल्स और सरप्लस आर्टिकल्स एंड मेक इट रिकमेंडेशंस फॉर कंडेमनेशन और डिस्पोजल। कुछ सरप्लस आर्टिकल्स है जो ज्यादा एरिया ऑक्युपाई कर रहा है, स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, और वहां पर कमिटी रिकमेंड करेगा कि इसको कंडेम और डिस्पोजल करना है, तो ये सब कमिटी रिव्यू करेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, बेस्ड ऑन द डिसीजन टेकन बाय द कमिटी, ओके, द प्रिंसिपल ऑफ द जेएनवी विल अप्रूव द प्रपोजल फॉर द आइटम्स हुज परचेज वैल्यू इज अप टू 50,000 पर आइटम एंड स्टार्ट द प्रोसीजर
ऑफ डिस्पोजल ऑफ सच आर्टिकल्स। मैं बताया पर आर्टिकल, पर आइटम जो ओरिजिनल परचेज प्राइस, इसमें और एक बार लिख देता हूं, जो फर्स्ट वन है ओरिजिनल परचेज प्राइस, वो पर आर्टिकल, पर आर्टिकल, पर आर्टिकल अप टू 50K, तब एक्चुअली जेएनवी प्रिंसिपल जो कमिटी को रिकमेंड करेगा, ठीक है, कि आप स्टार्ट कर दीजिए, प्रोसीज्योर को स्टार्ट कर दीजिए, ओके, डिस्पोजल के लिए। तो उसमें आपका जो जेएनवी प्रिंसिपल है वो चेयरमैन है, और वाइस प्रिंसिपल है, यदि वाइस प्रिंसिपल नहीं है सीनियर मोस्ट टीचर है, स्टॉक होल्डर है, स्टोर कीपर है, और जो ओएस है वो मेंबर सेक्रेटरी है, ओके। और नेक्स्ट वन, यदि आपका कोई भी वैल्यू, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट देखिए, फॉर आर्टिकल्स हुज परचेज वैल्यू इज मोर देन ₹50,000, कोई भी आइटम उसका जो ओरिजिनल परचेज वैल्यू मोर देन 50,000 हो जाएगा, तो वो प्रपोजल किसके पास जाएगा? एनवीएस आरओ को भेज दिया जाएगा, जो उसका रीजनल ऑफिस है, रीजनल ऑफिस को भेजा जाएगा अप्रूवल के लिए। तो इसमें आप देखिए, यदि पर आइटम, इसको याद रखिए, पर आइटम ओरिजिनल परचेज प्राइस, ठीक है, ग्रेटर देन 50K हो जाएगा, और उसको हम कंडेमनेशन की डिस्पोजल 50,000 हो जाएगा, और हम उसको कंडेमनेशन और डिस्पोजल करने के लिए हम प्रोसेस करेंगे। तो इस तरीके का केस को हम डायरेक्टली हम हैंडल नहीं कर सकते, तो इसको हम अप्रूवल के लिए रीजनल ऑफिस, ओके, जो कंसर्न रीजनल ऑफिस है, अप्रूवल के लिए भेजेंगे, ठीक है। तो इसमें दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पर आइटम देखिए यहां पर दे दिया अप टू 50,000 पर आइटम, तो इसमें कोई जरूरत नहीं है, इस केस में रीजनल ऑफिस को अप्रूवल के लिए भेजना जरूरत नहीं है, ये पावर है वो कंसर्न जेएनवी प्रिंसिपल के, वो कमिटी को रेकमेंड करेगा कि अभी हम डिस्पोज करेंगे। मगर यदि पर आइटम का ओरिजिनल परचेज प्राइस मोर देन 50,000 हो जाएगा, तो इस तरह का आर्टिकल को जब हम कंडेम करने के लिए ट्राई करेंगे, तो फर्स्ट हम आरओ को, रीजनल ऑफिस को भेजेंगे अप्रूवल के लिए, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट वन, अच्छा, जेएनवी का क्या पावर है हम देखेंगे। पावर ऑफ अथॉरिटीज फॉर डिसाइडिंग कंडेमनेशन एंड डिस्पोजल, की राइट ऑफ आर्टिकल्स। तो जेएनवी का क्या पावर है देखेंगे, ठीक है। जेएनवी लेवल में मैं अभी बता चुका हूं कि अन अनसर्विसेबल आर्टिकल which has completed its lifespan and an obsolete articles which have the cost up to ₹50,000 per article original purchase price can be disposed of judiciously at Vidyalaya level by the principal after these are recommended for condemnation by the committee। तो ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं, कोई अनसर्विसेबल आर्टिकल है जिसका लाइफ स्पैन खत्म हो चुका है, कोई ऑब्सोलेट आर्टिकल है, तो उसको हम कंडेम करेंगे। मगर ईच आर्टिकल का जो ओरिजिनल परचेज प्राइस है, इट इज अप टू 50,000 है ईच आर्टिकल का। इसमें कर देता हूं ईच, ओके, आर्टिकल का जो ओरिजिनल परचेज प्राइस, ओपीपी ओरिजिनल परचेज प्राइस है, अप टू 50,000 है, ठीक है। इसमें एक्चुअली इसको जुडिशियसली डिस्पोज किया जाएगा विद्यालय लेवल में बाय द प्रिंसिपल आफ्टर दीज आर रिकमेंडेड बाय द कंडेमनेशन कमिटी, ठीक है। तो ये जेएनवी लेवल में होगा। नेक्स्ट वन, अगेन जेएनवी लेवल में अन अनसर्विसेबल आर्टिकल व्हिच हैव नॉट कंप्लीटेड इट्स लाइफ स्पैन एंड इट्स बियॉन्ड इकोनॉमिक रिपेयर। ऐसा कुछ आर्टिकल्स है उसका लाइफ स्पैन खत्म नहीं हुआ है, मगर हम रिपेयर करने के लिए लेंगे तो उसमें ज्यादा खर्च होगा, ओके। Some unserviceable article whose lifespan is not completed but it is unserviceable, and if we take this article for repair, then actually more expenditure, okay, it means expenditure would be more, ठीक है। तो अनइकोनॉमिकल हमारे लिए होगा, हम रिपेयर करेंगे। तो इस तरीके का केस में क्या होगा, हम एक सर्टिफिकेट लेंगे, सर्टिफिकेट ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, जो एक्चुअली असेट है उसका जो ओरिजिनल इक्विपमेंट जो मैन्युफैक्चरर है उससे एक सर्टिफिकेट हम लेंगे। अदरवाइज एनी ऑथराइज्ड वर्कशॉप है कि सर्विस सेंटर है, वो उसमें लिख देंगे कि ये जो रिपेयर है इट इज नॉट इकोनॉमिकल वन, ठीक है। वो एक सर्टिफिकेट यहां पर रखना है, और वही है जो वैल्यू होगा
पर आर्टिकल का जो ओरिजिनल परचेज प्राइस होगा अप टू 50,000 होगा, क्योंकि पर आर्टिकल का ओरिजिनल परचेज प्राइस अप टू 50,000 है, तो जेएनवी लेवल में उसको हम डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, कंडेम कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ इस केस में क्या है, इट मीन्स द प्रोडक्ट हैज नॉट कंप्लीटेड इट्स लाइफ स्पैन, but before lifespan actually it is unserviceable one, and if we take this article for repair then it is uneconomical one. It means financial burden would be more expenditure would be more. तो इस केस में हमको एक सर्टिफिकेट लेना है, जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, कोई वर्कशॉप है, कोई सर्विस सेंटर है, उनसे एक सर्टिफिकेट लेना है कि ये इक्विपमेंट को रिपेयर किया जाएगा, तो ये इकोनॉमिकल नहीं होगा, और उसको हम रिकमेंडेशन जो कंडेमनेशन कमिटी है उसका रिकमेंडेशन से हम उसको डिस्पोज करेंगे, उसको कंडेम करेंगे। और यहां पर और ये क्वेश्चन सभी समय आता है, आप याद रखिए जो जेएनवी लेवल में ये हम 15 लाख तक पर फाइनेंशियल ईयर कर सकते हैं। जैसे ईच आर्टिकल, यहां पर मैं लिख देता हूं, ईच आर्टिकल उसका ओरिजिनल परचेज प्राइस ओके अप टू 50K, ये पर आर्टिकल का जो ओरिजिनल परचेज प्राइस अप टू 50K है। और ये जो दोनों चीज बताया, एक है लाइफ स्पैन खत्म हो चुका है, एक है लाइफ स्पैन खत्म नहीं हुआ है मगर हम रिपेयर के लिए लेंगे तो वो अनइकोनॉमिकल होगा। तो ये सब मिलाकर 15 लाख तक हमारे पास पावर है, ठीक है। तो जेएनवी लेवल में पावर है, टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल आइटम्स जो फर्स्ट एंड सेकंड में बताया, तो नॉट एक्सीड 15 लाख पर फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो जेएनवी लेवल में हम इसको कंडेम कर सकते हैं। इसमें 2-3 चीज को आपको याद रखना है, जो ईच आर्टिकल का जो ओरिजिनल परचेज प्राइस होगा अप टू 50,000 होगा, ये एक हो गया। सेकंड क्या है, लाइफ स्पैन खत्म हो चुका है, ठीक है, लाइफ स्पैन खत्म हो चुका है और ईच आर्टिकल का ओरिजिनल परचेज प्राइस अप टू 50,000 है। और नेक्स्ट वन, लाइफ स्पैन खत्म नहीं हुआ है बट ईच आर्टिकल का ओरिजिनल परचेज प्राइस अप टू 50,000 है, हम उसको रिपेयर करने के लिए लेंगे तो वहां पर अनइकोनॉमिकल होगा, तो वहां पर हम एक सर्टिफिकेट लेंगे जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, सर्विस सेंटर है, ठीक है। और ये सब मिलाकर ये 15 लाख तक हम जो टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल आइटम्स, जो कॉस्ट हम देखेंगे, कॉस्ट मींस ओरिजिनल परचेज प्राइस हम लेते हैं, ओरिजिनल परचेज प्राइस ऑफ द आइटम्स, बट ईच आइटम का जो ओरिजिनल परचेज प्राइस होगा अप टू 50,000 होगा, इसे हम काउंट करेंगे तो 15 लाख तक होगा, ठीक है। तो सपोज यहां पे मैं क्या किया, सपोज 10 आइटम्स को लिया और ईच आइटम का जो ओरिजिनल परचेज प्राइस है अप टू क्या है 50,000 है, ठीक है। और ऐसे हम काउंट करके देखेंगे, जो टोटल हो जाएगा, जो ये 10 आइटम्स को हम कंडेम करना चाहते हैं, तो इस हिसाब से हम देखेंगे तो अप टू 15 लाख तक, नॉट एक्सीड 15 लाख, अप टू 15 लाख तक हम विद्यालय लेवल में कर सकते हैं, ठीक है। 15 लाख से ज्यादा होगा तो वो आरओ का, रीजनल ऑफिस का, एनवीएस आरओ का अप्रूवल चाहिए, ठीक है। तो ये जेएनवी लेवल में था। बाकी आरओ लेवल में जाएंगे, किस केस में हम रीजनल ऑफिस में जाएंगे। फर्स्ट है अन अनसर्विसेबल आर्टिकल व्हिच हैज कंप्लीटेड इट्स लाइफ स्पैन एंड एन ऑब्सोलेट आर्टिकल हैविंग कॉस्ट मोर देन 50,000 पर आर्टिकल का जो यहां पर देखिए आरओ लेवल में कब जाएगा ना, पर आर्टिकल ओरिजिनल परचेज प्राइस ग्रेटर देन 50K, ओके। जो आर्टिकल को हम कंडेम करना चाहते हैं उसका हम ओरिजिनल परचेज प्राइस देखेंगे ग्रेटर देन 50K, तो ये एक्चुअली आरओ को जाएगा, आरओ का अप्रूवल चाहिए। अप टू 50,000 विद्यालय लेवल में होगा, मगर मोर देन 50,000 होगा उसका ओरिजिनल परचेज प्राइस और हम उसको कंडेम और डिस्पोज करना चाहते हैं तो आरओ का अप्रूवल चाहिए, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट वन यहां पर देख लीजिए, सरप्लस, यहां पर दे दिया डिस्पोजल ऑफ सरप्लस आर्टिकल्स ऑफ एनी वैल्यू आफ्टर इंश्योरिंग दैट सेम इज नॉट रिक्वायर्ड इन एनी अदर जेनवी। अच्छा, सरप्लस आर्टिकल एनी वैल्यू, कोई सरप्लस आर्टिकल है उसका कोई भी वैल्यू जो ओरिजिनल परचेज प्राइस है, ये आरओ का अप्रूवल होगा। मगर फास्ट जो देखिए यहां पर, अच्छा फास्ट में क्लियर कर दिया, यहां पे जो आर्टिकल्स को हम कंडेम करना चाहते हैं पर आर्टिकल का ओरिजिनल परचेज प्राइस ग्रेटर देन 50K होगा तो अप्रूवल चाहिए आरओ का। सेकेंड में बता दिया कि जैसे ऐसा कुछ आर्टिकल्स है
उसका लाइफ स्पैन खत्म नहीं हुआ है मगर वो अनसर्विसेबल है, अनसर्विसेबल वन बिफोर कंप्लीशन ऑफ लाइफ स्पैन, और उसका जो ओरिजिनल परचेज प्राइस है, जो ओरिजिनल जो ओपीपी है, ओरिजिनल परचेज प्राइस है ग्रेटर देन 50K है, ठीक है, और उसको हम रिपेयर करने के लिए भेजेंगे तो वो अनइकोनॉमिकल होगा, तो अगेन इसको आरओ में भेजा जाएगा, ठीक है। मगर थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट में ये जो सरप्लस आर्टिकल्स बताया उसका कोई भी वैल्यू है। सरप्लस आर्टिकल्स कुछ ऐसा सरप्लस आर्टिकल्स है जो स्पेस ऑक्यूपाई, मोर स्पेस एक्चुअली इट ऑक्यूपाई, राइट, एंड surplus articles actually it cannot be used properly, okay, so इस तरीका का जो आर्टिकल्स को हम जब कंडेम करेंगे कि डिस्पोज करेंगे तब आरओ का अप्रूवल चाहिए, कोई भी वैल्यू, एनी वैल्यू, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ वन, कोई राइटिंग ऑफ मिसिंग और स्टोलन आर्टिकल्स ऑफ एनी वैल्यू थ्रू ए डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग। यदि कोई आर्टिकल है वो मिस हो गया, स्टोलन हो गया कि मिसिंग हो गया, वहां पर तो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग होगा। जो आर्टिकल्स मिस हुआ कि स्टोलन हुआ तो वो किसका, जो स्टॉक होल्डर का अंडर में होगा तो उसको ऊपर एक्चुअली डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग होगा, क्योंकि वही रेस्पॉन्सिबल था। द स्टॉक होल्डर इज रेस्पॉन्सिबल टू प्रिजर्व द आर्टिकल्स and under his supervision if article is missing and article is stolen then definitely disciplinary proceeding will be initiated। तो ये सब मैटर जाएगा आरओ को। नेक्स्ट वन, जब ये डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग होगा, ये जो फ्रॉड, जैसे आप देखिए ये जो फिफ्थ पॉइंट है, आप फ्रॉड का आप जीएफआर रूल देखिए, मैं बता देता हूं, जीएफआर रूल 217 उसका आप देख लीजिए, सबसेक्शन सेकंड देख लीजिए, ठीक है, नहीं सबसेक्शन उसका सबसेक्शन फोर्थ देख लीजिए, ठीक है, आईवी देख लीजिए, जीएफआर 217 सबसेक्शन आईवी देख लीजिए, उसका फोर्थ पार्ट देख लीजिए, क्लियरली मेंशन है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटी हेडेड बाय क्लस्टर इंचार्ज एससी फॉर द डिस्पोजल ऑन सर्विसेबल आइटम्स ड्यू टू नेग्लिजेंस, फ्रॉड, थेफ्ट, मिसचीफ और मिसिंग। तो यहां पर क्या है, यदि आपका सपोज नेग्लिजेंस के वजह से अनसर्विसेबल हो गया बिफोर लाइफ स्पैन, कि फ्रॉड है, ओके, आर्टिकल के ऊपर फ्रॉड है, कि थेफ्ट हो गया, चोरी हो गया, कि मिसचीफ और मिसिंग हो गया, तो इस केस में जो इट मींस इंक्वायरी होगा, वो जो आपका क्लस्टर का जो एसी है, असिस्टेंट कमिश्नर है, वो हेड रहेंगे और उनका अंडर में इट मींस कमिटी मेंबर्स रहेंगे और इंक्वायरी होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन मगर जो कमिटी फॉर्म होगा उसका हेड रहेंगे असिस्टेंट कमिश्नर। तो आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि फ्रॉड हो जाता है, कि मिसचीफ है, कि सपोज मिसिंग है, कि स्टीलिंग है, ये सब केस में एक कमिटी फॉर्मेशन होगा, उसका हेड क्लस्टर इंचार्ज, जो आपका जो विद्यालय जो क्लस्टर में है उसका जो हेड है असिस्टेंट कमिश्नर, वो हेड रहेंगे कमिटी का और उनका अंडर में वो इंक्वायरी होगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट वन, यदि आपका मैं बताया अप टू पूरा फाइनेंशियल ईयर में, यदि टू एक्सटेंड द एनुअल अपर लिमिट ऑफ जेएनवीज ग्रेटर देन 50, जेएनवी लेवल में ग्रेटर देन 15 लाख हो जाता है। मैं जैसे बताया था, देखिए यहाँ इसको थोड़ा क्लैरिफाई कर देता हूं। जैसे सपोज यहाँ पर देखिए, ईच आर्टिकल जिसको हम कंडेम करना चाहते हैं उसका ओरिजिनल परचेज प्राइस है अप टू 50K है, मगर उसका पूरा टोटल हम कॉस्ट देखेंगे, टोटल कॉस्ट ऐसे कैलकुलेट करके देखेंगे, वो ग्रेटर देन 15 लाख हो जाएगा। तो अप टू 15 लाख इट मींस पर फाइनेंशियल ईयर, टोटल फाइनेंशियल ईयर में, ओके, इन एफवाई कर दिया, इन ए फाइनेंशियल ईयर, ओके, ग्रेटर देन 15 लाख होगा तब वो आरओ का अप्रूवल चाहिए। अप टू 15 लाख में जैसे बताया, ईच आर्टिकल ओरिजिनल परचेज प्राइस अप टू 50K, तो वो तो विद्यालय लेवल में होगा, ओके, मगर टोटल कॉस्ट ग्रेटर देन 15 लाख होगा और पूरा फाइनेंशियल ईयर में, तो इस केस में आरओ का अप्रूवल चाहिए, वो पॉइंट दे दिया, ठीक है। तो ये सब चीज को आप थोड़ा देखिए, और पूरा हेडक्वार्टर का पूरा पावर है, ये तो जेएनवी लेवल में आप क्या पावर है, आरओ लेवल में क्या पावर है, मगर हेडक्वार्टर में फुल पावर है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट वन, फिफ्थ पार्ट को देखेंगे, डिस्पोजल ऑफ ऑन सर्विसेबल आइटम्स ड्यू टू नेग्लिजेंस, फ्रॉड, थेफ्ट, मिसचीफ और मिसिंग। आप जीएफआर में बताया था
आप GFR आप 217 उसका 4th पार्ट देखिए, उसमें क्लियरली मेंशन है, ठीक है, नेग्लिजेंस फ्रॉड के ऊपर। तो इसमें ड्यू टू नेग्लिजेंस एक्चुअली द प्रोडक्ट इज ऑन सर्विसेबल बिफोर लाइफ स्पैन, कि फ्रॉड इज देयर, कि सपोज समवन एक्चुअली स्टोलन द प्रोडक्ट, ओके, मिसचिफ इज देयर और द प्रोडक्ट इज मिसिंग, ये सब केस में तो कमिटी फॉर्मेशन होगा। कमिटी का हेड तो असिस्टेंट कमिश्नर रहेंगे। आपका जो क्लस्टर है, विद्यालय जिस क्लस्टर में है उसका तो हेड असिस्टेंट कमिश्नर है, तो वो कमिटी का हेड बनेंगे और इंक्वायरी होगा, ठीक है। और इंक्वायरी होने के बाद इंक्वायरी रिपोर्ट एक्चुअली डिप्टी कमिश्नर के पास जाएगा और वो एक्चुअली पेनाल्टी इम्पोज करेंगे और रिकवरी दोनों, पेनाल्टी रिकवरी दोनों होगा, ठीक है नहीं। तो ये चीज को यहाँ पर दे दिया गया है, ठीक है। मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब फ्रॉड मिसिंग, थेफ्ट, नेग्लिजेंस, ये सब GFR रूल 217 4th पार्ट है, ठीक है। तो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग जो कमिटी का हेड रहेंगे असिस्टेंट कमिश्नर, इंक्वायरी होगा, इंक्वायरी रिपोर्ट डिप्टी कमिश्नर के पास जाएगा और डिप्टी कमिश्नर किस तरीके का पेनल्टी लगेगा और कितना रिकवरी होगा, वो एक्चुअली वो एक्शन लेंगे ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर, ठीक है। और वहां पर पेनल्टी और रिकवरी और बोथ, ठीक है। तो इस केस में एक क्वेश्चन आता है, यदि सपोज थेफ्ट हो गया, someone has stolen the product, कि due to negligence the product is unserviceable before lifespan, कि any fraud is there, so immediately जो विद्यालय का प्रिंसिपल है वो इमीडिएटली एक्चुअली इन्फॉर्म करेगा, ओके, DC सर को, डिप्टी कमिश्नर सर को इमीडिएटली इन्फॉर्म करेगा कि प्रोडक्ट इज अनसर्विसेबल वन बिफोर लाइफ स्पान ड्यू टू नेग्लिजेंस, ड्यू टू थेफ्ट, ड्यू टू मिसिंग, ड्यू टू फ्रॉड, ओके। तो ये जब रिपोर्ट मिल जाएगा रीजनल ऑफिस को, तो रीजनल ऑफिस को जब ये रिपोर्ट मिलेगा, ये जो फ्रॉड के ऊपर, कि मिसिंग के ऊपर, ठीक है, कि नेग्लिजेंस के ऊपर, तो इस केस में वो 1 मंथ के अंदर, विदिन 1 मंथ वो पूरा मामला को डिस्पोज करने के लिए ट्राई करेगा। तो इसके ऊपर एक MCQ आ सकता है। तो रीजनल ऑफिसर्स में एंश्योर डिस्पोजल ऑफ ऑल सच केसेस ऑन प्रायोरिटी बेसिस, प्रिफरेबली विदिन 1 मंथ ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द रिपोर्ट बाय JNVs। तो इमीडिएटली प्रिंसिपल वो रिपोर्ट करेगा, इट मीन्स रीजनल ऑफिस को, ठीक है। और रीजनल ऑफिस एक्चुअली प्रॉम्प्टली एक्शन लेगा और उसको जो मैटर है उसको ट्राई करेगा डिस्पोजल करने के लिए विदिन 1 मंथ। तो इसके ऊपर आपको क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है। डिस्पोजल ऑफ सरप्लस आइटम्स यहां पर दे दिया। तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी एनी वैल्यू ऑफ सरप्लस आइटम, एनी वैल्यू ऑफ सरप्लस आइटम मीन्स उसका, सपोज हम उसको कंडेम करेंगे, डिस्पोज करेंगे, तो RO का अप्रूवल चाहिए, एनी वैल्यू ऑफ सरप्लस आइटम। तो यहां पर दे दिया है, देखिए, JNVs व्हेन शिफ्टेड फ्रॉम टेम्पररी साइट टू परमानेंट साइट may have many surplus items, जैसे GI seeds, GI pipes, ceiling fans, tube light fittings, water storage tanks, water taps, students beds, iron double beds, electrical fittings, etc. For disposal of surplus items which are serviceable, ये सब सर्विसेबल है। परमानेंट एक्चुअली टेम्पररी साइट में था विद्यालय, स्कूल, तो नाउ अभी क्या है, वो उसका परमानेंट बिल्डिंग बन चुका है। विद्यालय वाज फंक्शनिंग इन द टेम्पररी साइट, नाउ एक्चुअली शिफ्टेड टू परमानेंट साइट। तो जो टेम्पररी साइट में ये जो आइटम्स था ये सरप्लस हो जाएगा, क्योंकि न्यू जो कंस्ट्रक्शन हुआ, जो परमानेंट साइट में तो सब कुछ है, तो ये सब सरप्लस हो जाएगा। तो एक प्रपोजल फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ द JNV शुड बी फॉरवर्डेड टू रीजनल ऑफिस। एक प्रपोजल जाएगा कि टेम्पररी साइट में ये सब सरप्लस आर्टिकल्स है जो सर्विसेबल है, तो वहां पर रीजनल ऑफिस एक्चुअली ये प्रपोजल के ऊपर एक्शन लेगा। फर्स्ट वन, नियर बाय JNV को वो ट्रांसफर कर सकता है यदि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम रहेगा। द ट्रांसफर ऑफ आइटम्स टू नियर बाय JNVs कंसिडरिंग द विएबल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक है। और नेक्स्ट है ऑक्शन, थ्रू ऑक्शन इसको डिस्पोजल ऑफ आइटम्स बाय ऑक्शन बाय द JNV, बट दीज टू एक्शंस एक्चुअली टेकन बाय द इट मींस रीजनल ऑफिस। तो जो कंसर्न प्रिंसिपल है वो बोलेगा कि टेम्पररी साइट में ये सरप्लस आर्टिकल्स है और ये सर्विसेबल है, ठीक है। तो वो प्रपोजल वो दे देगा RO को, तो RO डिसीजन लेगा। RO ये कर सकता है, वो जो सरप्लस आइटम्स है जो नियर बाय JNV है उसको ट्रांसफर कर देगा
और यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को देखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लेस होगा, उस सरप्लस आइटम्स को नियर बाय जेएनवी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, अदरवाइज ऑक्शन कर दिया जाएगा। तो जो भी रीजनल ऑफिस डिसीजन लेगा, तो अकॉर्डिंग टू द डिसीजन ऑफ द रीजनल ऑफिस, ओके, देन द अपील्स प्रोसेस विल बी इनिशिएटेड। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान दीजिए दोनों पॉइंट्स को। नेक्स्ट है व्हाइल शिफ्टिंग ऑफ द विद्यालय फ्रॉम टेम्पररी साइट टू परमानेंट साइट, जो फ्रेजाइल आइटम्स है, फ्रेजाइल आइटम्स क्या है, जब हम ट्रांसपोर्टेशन में लेंगे वो जैसे सब टूट जाएगा, क्योंकि फ्रेजाइल मीन्स ब्रिटल आइटम्स है, ट्रांसपोर्टेशन में हम जब लेकर जाएंगे वो डैमेज हो सकता है। तो इस तरीके का आइटम को हम डिस्पोज अप कर देंगे विद अप्रूवल फ्रॉम द रीजनल ऑफिस प्रायर टू शिफ्टिंग ऑफ द विद्यालय। तो जो फ्रेजाइल आइटम्स है, जब हम उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे वो डैमेज हो सकता है, तो इसके लिए शिफ्टिंग के पहले, जैसे टेम्पररी टू परमानेंट शिफ्टिंग के पहले हम आरओ का अप्रूवल लेके उसको डिस्पोज अप करेंगे। ठीक है, और एक यहां पर जो इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है, देखिए, द आर्टिकल्स विच कैन बी कंडेम्ड एट द लेवल ऑफ जेएनवी मे बी डिसाइडेड एंड द प्रपोजल फॉर द रेस्ट विच रिक्वायर्स द अप्रूवल फ्रॉम रीजनल ऑफिस। अच्छा, यहां पर देखिए, तो आप तो जानते हो कि जेएनवी लेवल में किस तरीके का आर्टिकल्स को कंडेम और डिस्पोज किया जाएगा। यदि जो रेस्ट मैटर है, जो आरओ का अप्रूवल चाहिए, ठीक है, सपोज में जैसे ओरिजिनल परचेज प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, ग्रेटर देन 50,000, तो ये आरओ का अप्रूवल चाहिए। जब हम इस तरीके की सरप्लस आइटम्स को हम कंडेम और डिस्पोज करेंगे, तो सरप्लस आइटम्स को एनी वैल्यू है तो आरओ का अप्रूवल चाहिए। तो इस केस में जब आरओ एक्चुअली आपका प्रपोजल को रिसीव करेगा, इस तरीका का प्रपोजल को, तो वो 15 डेज के अंदर डिसीजन लेगा। ठीक है, तो आप रिपोर्ट भेजेंगे, आरओ का अप्रूवल चाहिए, क्योंकि ईच आर्टिकल का ओरिजिनल परचेज प्राइस ग्रेटर देन 50,000 है, तो आप कंडेम और उसको डिस्पोज करना चाहते हो, तो वो आरओ का अप्रूवल चाहिए, तो आप आरओ को भेजेंगे। जब आरओ उसको रिसीव करेगा आपका प्रपोजल को, तो उसका 15 डेज के अंदर वो डिसीजन लेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है, राइट। नेक्स्ट वन, द आर्टिकल्स डिसाइडेड फॉर कंडेमनेशन मे बी ऑक्शन टू डीलर्स और डिस्पोज्ड अप आफ्टर इश्यू ऑफ द स्पेसिफिक सैंक्शन ऑर्डर बाय द प्रिंसिपल एंड द वैल्यू सो रिकवर्ड। अच्छा, आप सपोज ऑक्शन कर दिया डीलर्स को कि डिस्पोज कर दिया, जो भी वैल्यू आप रिकवर करेंगे वो क्रेडिट होगा कैपिटल रिसिप्ट्स फॉर नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स। जो फिक्स्ड एसेट्स का जो कैपिटल रिसिप्ट्स है, वो जो एक्चुअली रेवेन्यू मिलेगा वो उसी कैपिटल रिसिप्ट्स ऑफ नॉन, इसको याद रखिए, कैपिटल रिसिप्ट्स ऑफ नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स में एक्चुअली वो हेड ऑफ द अकाउंट में जमा होगा। ठीक है, और नेक्स्ट वन, द प्रिंसिपल ऑफ द जेएनवी while auctioning the unserviceable non-consumable articles shall fix a reserve price or scrap value of such non-consumable items and the articles can be disposed of to the highest bidder। तो उसका एक रिजर्व प्राइस होता है, तो जो कंसर्न जेएनवी का प्रिंसिपल है, वो जो अनसर्विसेबल नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स है, उसका रिजर्व प्राइस और स्क्रैप वैल्यू को फर्स्ट वन डिटेक्ट करेगा कि इसका स्क्रैप वैल्यू क्या होगा, कि उसका रिजर्व प्राइस क्या है, और जो हाईएस्ट बिडर होगा उसको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान दीजिए। तो स्क्रैप वैल्यू और रिजर्व प्राइस एक्चुअली डिसाइड बाय द प्रिंसिपल ऑफ द कंसर्न जेएनवी। आफ्टर रिसीविंग द अप्रूवल ऑफ रीजनल ऑफिस, ओके, और आफ्टर पासिंग कंडेमनेशन राइट ऑफ आर्टिकल्स बाय द प्रिंसिपल एज द केस में बी, द विद्यालय शैल मेक अप्रोप्रिएट एंट्री। अच्छा, जब डिस्पोज रीजनल ऑफिस से आपको परमिशन मिल गया कि उसको राइट अप कर दो, उसको डिस्पोज कर दो, तो उसका आप स्टॉक होल्डर को बोलेंगे, स्टॉक रजिस्टर में वो क्लियरली मेंशन करेगा रेफरेंस नंबर और किस डेट में एक्चुअली सैंक्शन हुआ कि आप ये आर्टिकल्स को कंडेम की डिस्पोज कर सकते हो। तो आप इमीडिएटली आपको स्टॉक होल्डर को बोलना है कि स्टॉक रजिस्टर में वो क्लियरली मेंशन करेगा, ठीक है, कि सैंक्शन ऑर्डर का रेफरेंस नंबर विथ डेट। ठीक है, जो भी राइट ऑफ आर्टिकल्स का जो स्टॉक जो असेट रजिस्टर में उसमें मेंशन करेगा। और एक यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब कोई आप असेट खरीद रहे हो
तो जब असेट आप परचेज करोगे तो उसमें आप मेंशन कर दो, कुछ मार्क दे दो। वो जब आप उसका जब लाइफ स्पैन खत्म हो जाएगा, आप जब कंडेम करेंगे तो वो मार्क से आप डिटेक्ट कर पाएंगे। तो द विद्यालय शैल मार्क और एनग्रेव द ईयर ऑफ परचेज रिफरेंस। तो आप क्या करोगे, इसको ध्यान देना है, जब कोई भी फिक्स्ड एसेट आप परचेज कर रहे हो तो डेट ऑफ परचेज को उसमें उसके ऊपर मेंशन कर दो। ठीक है, सपोज आप डेस्कटॉप खरीद रहे हो, उसके ऊपर आपको मार्किंग कर दो उसका डेट ऑफ परचेज, कि लैपटॉप है उसके ऊपर डेट ऑफ परचेज। ठीक है, कोई प्रोजेक्टर, डेट ऑफ परचेज उसके ऊपर मार्क कर दो। ठीक है, तो इजी हो जाएगा, जब उसको हम डिस्पोज करेंगे इजी हो जाएगा कि कौन सा डेट में इसको परचेज किया गया था। ठीक है, क्लियर। सो दिस इज टू बी वेरीफाइड विथ रेफरेंस टू द एंट्री मेड इन द स्टॉक रजिस्टर एट द टाइम ऑफ कंडेमनेशन। और जनरल फाइनेंशियल रूल्स में दिया है, आप देखिए जो रूल 217 है वो डिस्पोजल ऑफ गुड्स के ऊपर है। मैं थोड़ा जीएफआर को जाता हूं, यहां पर आप एनवीएस छोड़ दीजिए, जीएफआर रूल 217 डिस्पोजल ऑफ गुड्स। ठीक है, उसमें कमिटी फॉर्मेशन होगा, उसका जो रिजर्व प्राइस को डिटेक्ट किया जाएगा, कि जो नेग्लिजेंस फ्रॉड है, ठीक है, वो सब आ जाएगा डिस्पोजल ऑफ गुड्स में। तो मोड्स ऑफ डिस्पोजल देखिए, रूल 218 है मोड ऑफ डिस्पोजल, ये पूरा क्लियरली जनरल फाइनेंशियल रूल में है। यदि सरप्लस और ऑब्सोलेट और ऑन सर्विसेबल गुड्स ऑफ असेस्ड रेसिडुअल वैल्यू ग्रेटर देन 2 लाख से हम दो ऑप्शन में जाएंगे, उसको एडवर्टाइज टेंडर और पब्लिक ऑक्शन। याद रखिए, ग्रेटर देन 2 लाख जो सरप्लस है और कोई ऑब्सोलेट आर्टिकल से, कोई अनसर्विसेबल गुड्स है, यदि उसका रेसिडुअल वैल्यू ग्रेटर देन 2 लाख होगा तो हम आइदर एडवर्टाइज टेंडर में जाएंगे और पब्लिक ऑक्शन में जाएंगे। अच्छा, यहां पर आप क्वेश्चन पूछोगे कि यदि रेसिडुअल वैल्यू लेस देन 2 लाख होगा तो वो इट इज मेनली डिपेंड अपॉन द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, वो डिटरमाइन करेंगे कि किस मेथड को फॉलो करना है उसको डिस्पोज करने के लिए। ठीक है, मगर ग्रेटर देन 2 लाख से तो जब रेसिडुअल वैल्यू ग्रेटर देन 2 लाख से तो दो ऑप्शन है, एक है एडवर्टाइज टेंडर इनवाइट किया जाएगा और पब्लिक ऑक्शन। रूल 219 इसके लिए एडवर्टाइज टेंडर, तो डिस्पोजल के लिए जो एडवर्टाइज टेंडर इनवाइट किया जाएगा। रूल 220 डिस्पोजल थ्रू ऑक्शन। और 21 क्या है, जो एडवर्टाइज टेंडर और ऑक्शन में नहीं जाएगा उसका स्क्रैप वैल्यू। ओके, डिस्पोजल ऑफ एट स्क्रैप वैल्यू और बाय अदर मोड्स। आप एडवर्टाइज टेंडर ओपन किया मगर आपको नहीं मिला, बिडर्स नहीं मिले, कि आप पब्लिक ऑक्शन किया उसमें भी आप नहीं मिला कोई उसको खरीदने के लिए, तो अल्टीमेटली स्क्रैप वैल्यू में आप जाएंगे। ठीक है, और भाई नेतरम वो रूल 221 है। तो ये थोड़ा कुछ रूल्स को आप याद कर लीजिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जो आइटम्स एक्चुअली स्टूडेंट्स का है, ये सब आइटम्स जो है, जैसे यूनिफॉर्म आइटम्स है, ब्लेजर है, शूज है, बेडशीट्स है, टॉवेल्स है, स्कूल बैग है, पिलो कवर है, स्टेशनरी आइटम्स है, टेक्स्ट बुक्स है, तो इसको क्या है, उसका लाइफ स्पैन खत्म होने के बाद ही शुड नॉट बी टेकन बैक फ्रॉम द स्टूडेंट्स। इसको स्टूडेंट से नहीं लेना है, उसका लाइफ स्पैन खत्म होने के बाद भी ये सब चीज को स्टूडेंट से नहीं लेना है। ठीक है, क्लियर। तो ये जो है बेसिकली जो स्टूडेंट आइटम्स है, चाहे उसका लाइफ स्पैन खत्म हो गया मगर यू शुड नॉट टेकन फ्रॉम द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वन है जो टेक्स्ट बुक है, वो टेक्स्ट बुक्स में भी कभी कभी क्या है, टेक्स्ट बुक इट मीन्स हम बच्चों से ले जाते हैं टेम्पररी पीरियड के लिए, क्योंकि अभी हमारा जो न्यू बुक नहीं पहुंचा है, मगर टेक्स्ट बुक बेसिकली फिर जब न्यू बुक पहुंच जाता है हम टेक्स्ट बुक से रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिए जो स्कूल बुक से उसमें रेवेन्यू जनरेट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो जो एनसीईआरटी बुक्स हम प्रोक्योर करते हैं और स्टूडेंट्स को देते हैं, उसका जो एक्चुअली लाइफ स्पैन है 1 ईयर है, और उसको कभी भी डिस्पोज करके हम कुछ रेवेन्यू जनरेट नहीं करेंगे। बाकी और एक है जो मैट्रेसेस है, ब्लैंकेट है, पिलोज है, मॉस्किटो नेट्स है, मे बी कलेक्टेड, उसको आप कलेक्ट कर सकते हो स्टूडेंट से आफ्टर एक्सपायरी ऑफ लाइफ स्पैन, और उसको आप रिपेयर करने के बाद उसको रीयूज कर सकते हो, नहीं तो उसको डिस्पोज कर दो। ठीक है, मगर ये सब चीज को आप लाइफ स्पैन खत्म होने के बाद बच्चों से कलेक्ट कर लो और उसको रिपेयर करो, उसको रीयूज करने के लिए ट्राई करो, नहीं है तो उसको डिस्पोज कर दो। ठीक है, और कुछ कंज्यूमेबल आइटम्स है उसको डायरेक्टली हम डिस्पोज करेंगे, जैसे आपका जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स है, चाहे फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, क्रिकेट बॉल, शटलकॉक,
तो ये सब कंज्यूमेबल आइटम्स को हम क्या करेंगे, ये सब अनयूजेबल और अनरिपेयरेबल हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली हम उसको डिस्पोज करेंगे. ओके, मे बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय कंसर्न स्टॉक होल्डर एंड द प्रिंसिपल. और कुछ एक्सपायर्ड मेडिसिन है और हाजार्डस सब्सटेंसेस है और वेस्ट है, नॉट फिट फॉर फर्दर यूज. आप देखिए 217 रूल 217 भी में क्लियरली मेंशन है. उसका रूल 217 फिफ्थ पार्ट देखिए जीएफआर रूल का, उसमें क्लियरली मेंशन है कि ये जो एक्सपायर्ड मेडिसिन है, कुछ हाजार्डस सब्सटेंसेस है, कुछ स्क्रैप बैटरीज है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, तो ये एक्चुअली पॉल्यूशन होगा. तो इसको आपको जो प्रिंसिपल जेएनवी प्रिंसिपल जो प्रिंसिपल है और स्टॉक होल्डर है उसको डिस्पोज ऑफ करना जरूरी है. और मेडिसिन के केस में जो जेएनवी में तो आप जानते हो एक इट मीन्स फार्मासिस्ट होते हैं और नर्स होते हैं. तो इस केस में जो भी मेडिसिन आपको खरीदना है बल्क अमाउंट में मत खरीदो, पार्ट पार्ट करके खरीदो. ठीक है. बाकी कुछ फ्राजाइल लैब इक्विपमेंट्स है, जो लैब इक्विपमेंट्स फ्राजाइल आइटम्स है, कभी भी ब्रिटिल हो सकता है तो उसको कभी भी वो डैमेज हो सकता है, उसको डिस्पोज ऑफ कर दो. ठीक है. और एनी अदर आइटम ऑफ कंज्यूमेबल नेचर एज वेल एज बुकिंग ऑफ एक्सपेंडिचर अंडर कंज्यूमेबल हेड्स एंड नॉट इन द नेचर ऑफ एसेट्स. ओके, तो ये सब चीज को डिस्पोज ऑफ कर दो. ठीक है. तो कंज्यूमेबल आइटम्स को इट मीन्स इन्फॉर्म टू द स्टॉक होल्डर, इन्फॉर्म टू द प्रिंसिपल एंड देन इट शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ. क्लियर. नेक्स्ट चलेंगे वीडिंग आउट ऑफ लाइब्रेरी बुक्स. लाइब्रेरी बुक्स को कैसे हम वीडिंग आउट करेंगे, तो इसमें एक्चुअली जो बुक का लाइफ स्पान है टेक्स्ट बुक्स का वो 1 ईयर है. ठीक है. इसको ज्यादा हम नहीं बोलेंगे, तो उसका लाइफ स्पान 1 ईयर है. और एक चीज याद रखिए, ये जो बुक्स हम प्रोवाइड करते हैं बच्चों को 1 ईयर खत्म होने के बाद उसको हम डिस्पोज करके कुछ रेवेन्यू जनरेट नहीं करेंगे. ठीक है. बाकी प्रोसीजर है, जैसे वीडिंग आउट का डेफिनेशन क्या है. वीडिंग आउट ये है जैसे जो बुक्स है वो ओल्ड एडिशन हो गया. ठीक है. और बाकी बुक डैमेज हो चुका है, म्यूटिलेटेड हो चुका है, तो इस तरह का बुक्स को हम सेल में क्यों रखेंगे. तो जस्ट वी ट्रांसफर द बुक्स एक्चुअली फ्रॉम द सेल टू स्टोरेज. हम कुछ बुक्स है, ओल्ड एडिशन बुक है, जो बुक अभी रिलायबल नहीं है, जो बुक अभी उसका जो एडिशन है वो ऑलरेडी चेंज हो चुका है. ठीक है. ये सब हम स्टोरेज को ले जाएंगे, तो वही वीडिंग आउट है. ठीक है. तो इसमें याद रखिए कि अप टू लाइब्रेरी का बात बोल रहा हूं. आप जीएफआर को देखिए, जीएफआर रूल 215, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन मिल सकता है. इसमें आप देखिए, यदि आपका लाइब्रेरी में अप टू 20,000 बुक है तो एवरी ईयर उसका वेरिफिकेशन होगा. ठीक है. और मोर देन 20,000 टू 50,000 तो उसका एटलीस्ट वंस ड्यूरिंग इट मीन्स 3 इयर्स में एक बार उसका वेरिफिकेशन होगा. यदि ग्रेटर देन 20,000 अप टू 50,000 एटलीस्ट वंस मस्ट बी वेरीफाइड ड्यूरिंग 3 इयर्स. ओके. और बाकी जो ये जीएफआर रूल है, बाकी यदि बुक आपका ग्रेटर देन 50,000 होता है तो उसका सैंपल वेरिफिकेशन होगा, एटलीस्ट सैंपल वेरिफिकेशन होगा एटलीस्ट वंस ओके इन 3 इयर्स. और इसमें यदि कुछ अनयूजुअल आ जाता है तो पूरा कंप्लीट वेरिफिकेशन होगा. ये 3 चीज को आपको याद रखिए. मैं जेएनवी के बारे में अभी नहीं बता रहा हूं, ये जीएफआर का. ठीक है. और एक बार जीएफआर 215 ये बोल रहा है, तो इसमें अप टू 20 के ये एवरी ईयर वेरीफाई होगा. तो मोर देन ग्रेटर देन 20 के टू 50 के एटलीस्ट वंस ओके ड्यूरिंग 3 इयर्स. ठीक है. और बाकी एक याद रखो, ग्रेटर देन 50,000 हो रहा है तो उसका जो वेरिफिकेशन होगा वो सैंपल वेरिफिकेशन होगा इट मीन्स ड्यूरिंग 3 इयर्स. ठीक है. तो ये चीज को थोड़ा ध्यान देना है. मगर जेएनवी में वही है, जो मोर देन 20,000 वॉल्यूम्स एंड अप टू 50,000 वॉल्यूम्स स्टॉक वेरिफिकेशन शुड बी डन एटलीस्ट वंस इन 3 इयर्स. और बाकी सैंपल फिजिकल वेरिफिकेशन एवरी ईयर होता है यहाँ पर. मगर मैं आपको 215 रूल 215 जीएफआर का भी बता दिया. अच्छा, स्टॉक वेरिफिकेशन का प्रोसीजर, एक स्टॉक रजिस्टर है और एक है सेकेंड वन असेसन नंबर ऑन लूज सीट मेथड. ये एक मेथड है.
थर्ड वन आपका लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर में सब कुछ मिल जाएगा। तो ये स्टॉक वेरिफिकेशन का प्रोसीजर है। ये 3 पॉइंट्स को रिमेंबर करो, जो जेएनवी एनवीएस में जो स्टॉक वेरिफिकेशन होता है, ये 3, एक स्टॉक रजिस्टर है, एक आसेसन नंबर है ऑन लूज सीट्स में, और एक है लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वन वीडिंग आउट, थोड़ा प्रोसेस को चलेंगे। इट मीन्स वीडिंग आउट के ऊपर में बताया, कुछ ओल्ड एडिशन है, कुछ गुड्स उसका क्वालिटी नहीं है, सब स्टैंडर्ड है, और बहुत पुराना हो चुका है, और बुक्स म्यूटिलेटेड हो चुका है, उसको सेल्फ से हम ट्रांसफर कर देते हैं स्टोरेज को, वही वीड आउट है। वही सेम चीज, सेम थिंग आई हैव रिटन। और बाकी उसका जो क्राइटेरिया ये है, किस क्राइटेरिया में हम वीडिंग आउट करेंगे, एक फिजिकल कंडीशन, उसका जो फिजिकल कंडीशन अच्छा नहीं है, म्यूटिलेटेड, ब्रिटल, पेस्ट इन्फेक्टेड, और एक डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन क्या है, मोर कॉपीज है, तो अवेलेबल ऑफ मल्टीपल कॉपीज, तो इतना क्यों जरूरत है, एक पर्टिकुलर जो ऑथर का बुक है वो मल्टीपल कॉपीज है, तो जरूरत नहीं, एक कॉपी रखो और सबको वीड आउट कर दो। ओल्डर आउटडेटेड एडिशंस आउटडेट हो चुका है, अभी न्यू एडिशन आ चुका है, तो ओल्ड एडिशन को हम क्यों रखेंगे। पुअर कंटेंट एंड यूज, जो इसका क्वालिटी नहीं है, उसको क्यों सेल में रखेंगे। और सुइटेबिलिटी ऑफ द सब्जेक्ट, वो भी सब्जेक्ट के लिए रिलेवेंट नहीं है, पहले था अभी रिलेवेंट नहीं है, तो उसको हम वीड आउट करेंगे। तो ये सब कंडीशंस को आपको याद रखना है। ठीक है। तो ये पूरा मैं बताया आज, जो ये था डिमांड आपका था। तो कल आपका एग्जाम है, जो जेएनवी बेसिकली डिपार्टमेंटल एग्जाम है, तो ये बहुत कैंडिडेट्स का डिमांड था, तो मैं प्रयास किया इसको बनाने के लिए, जो एग्जाम पैटर्न के ऊपर, परचेज प्रोसीजर के ऊपर, ये जो कंडेमनेशन और वीडिंग आउट ऑफ लाइब्रेरी बुक्स में ट्राई किया, तो उसको देख लीजिए, अप टू द एंड वीडियो सुनिए, आपको जीएफआर का कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो आज इतना ही है, थैंक यू और नमस्कार।